વાત કરીએ હવે બ્રિટનમાં લેબર પાર્ટી 14 વર્ષ બાદ ફરીથી સત્તામાં આવી ગઈ છે અને આજે આવેલા પરિણામમાં લેબર પાર્ટીએ બહુમતીના આંકડાને પાર કરી લીધો છે। તેને 650માંથી અત્યાર સુધીમાં 410 સીટો મળી છે। તો બ્રિટનમાં સરકાર બનાવવા માટે 326 સીટ જરૂરી હોય છે। બીબીસી પ્રમાણે ચૂંટણી દરમિયાન લેબર પાર્ટીને લીડ કરનારા સર કીર સ્ટાર્મર બ્રિટનના આવનારા વડાપ્રધાન રહેશે। ત્યારે જ 2022થી કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના નેતૃત્વ કરી રહેલા ઋષિ સુનકને આ વખતે 114 સીટો મળી છે। સુનકે હાર સ્વીકાર કરી છે અને પાર્ટીની માફી પણ માંગી છે। તેમણે સ્ટાર્મરને પણ ફોન કરી જીતના અભિનંદન આપ્યા। તો બ્રિટનમાં થયેલા મોટા ફેરફાર ઉપર વિગત આપી લંડનથી અમારા સંવાદદાતા સંજય પુરીએ આવો જોઈએ। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत और एक ऐतिहासिक जीत, कीर स्टार्मर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो बकिंगम पैलेस जाएंगे और किंग चार्ल्स उन्हें न्योता देगा नई सरकार बनाने के लिए। उधर ऋषि सुनक भी किंग चार्ल्स के पास जाएंगे सरकार का इस्तीफा देने के लिए। ऋषि सुनक को अब इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो नेता पार्टी को इस तरह हराए, पार्टी उसे क्षमा नहीं करती। पॉलिटिक्स में सुनक का करियर समझिए अब लगभग समाप्त, लेकिन वो अपनी सीट तो जीत चुके हैं, तो कम से कम पार्लियामेंट में एमपी बनकर तो रहेंगे। कीर स्टार्मर के लिए, लेबर पार्टी के लिए आगे बहुत बड़ी चुनौती, मुख्य तौर पर इकोनॉमी को संभालना और आगे बढ़ाना। एक तरफ महंगाई पर काबू, दूसरी ओर टैक्स का बोझ भी हल्का रखना और हेल्थ सिस्टम में कुछ नई जान डालना। इधर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, पिछले लेबर के नेताओं जैसे जेरेमी कॉर्बिन और रॉबिन कुक के साथ भारत का काफ़ी तनाव रहा है। भारत सरकार का अब ये प्रयत्न रहेगा कि इन नेताओं को संभाले और इन नेताओं के साथ जो नए नेता आ रहे हैं, जो कैबिनेट के मंत्री आएंगे, उनके साथ अच्छे नाते बनाएं। भारत के खिलाफ स्टार्मर ने कुछ कहा नहीं है, कोई आलोचना नहीं की, तो संभावना है कि नाते भारत और लेबर पार्टी की सरकार के बीच अब अच्छे बन सकते हैं। तो जीत बाद लेबर पार्टीનું નેતૃત્વ કરનારા કાયર સ્ટાર્મરે કહ્યું કે અમે તેના માટે પ્રચાર કર્યો અને જે કામ માટે ચૂંટણી લડ્યા તેનું પરિણામ આજે જોવા મળ્યું છે। પરિવર્તન હવે શરૂ થઈ ગયું છે અને હવે લેબર પાર્ટી દેશની સેવા કરવા માટે તૈયાર છે। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. તો સાથે જ ઋષિ સુનકે પણ હારની જવાબદારી સ્વીકારતા પક્ષની માફી માંગી। તેમણે કહ્યું કે આપણા દેશની સ્થિરતા અને ભવિષ્ય માટે પરિવર્તનને સ્વીકારવું જોઈએ। સાથે જ તેમણે કહ્યું કે જનતા આ નિર્ણયથી આપણે શીખવું જોઈએ અને પરિસ્થિતિનું ચિંતન કરવું જોઈએ। Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. તો બ્રિટનમાં થયેલા રાજકીય ફેરફારની ભારત ઉપર શું અસર થશે અને તેની जानकारी આપવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે हमारा संवाददाता लक्ष्मण रॉय अपनी साथ। लक्ष्मण जी, बताइए कि लेबर पार्टी के आने से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में क्या बदलाव होगा? देखिए, यूके में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको भारत के साथ कारोबारी रिश्ते के लिहाज से 3 पहलुओं पर जोर देना चाहिए। पहली बात कि भारत पिछले कई महीनों से, कहे कुछ सालों से, इस बात की कोशिश में लगा हुआ था कि वीज़ा के नियमों में ढील दी जाए
वहाँ के जो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसकी शर्तों में ढील दी जाए। भारत के लोग वहाँ पे खासतौर से आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी संख्या में जाते हैं काम करने के लिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की शर्तों में ढील दी जाए। बातचीत सकारात्मक रास्ते पे बढ़ रही थी, लेकिन अब लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये बातचीत शायद उतनी सकारात्मक ना हो, क्योंकि लेबर पार्टी शुरू से ही वीजा नियमों को सख्त करने के पक्ष में है। चुनाव प्रचार में भी उसने कहा था कि हम घरेलू लोगों को रोजगार देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पिछले कई महीनों से चर्चा भी हो रही थी वो थी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दस्तखत किया जाएगा। 14 दौर की बैठकें हो चुकी थी, काफी नजदीक हम लोग पहुंच गए थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने को लेकर के, लेकिन अब शायद वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने में देरी हो सकती है, क्योंकि कुछ शर्तों में बदलाव जरूर चाहेगी लेबर पार्टी, ताकि ये दिखे कि हमारी छाप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दिख रही है। उस देरी की वजह से भारत की कुछ इंडस्ट्री को फायदा होगा तो कुछ को नुकसान होगा। भारत की जो वाइन इंडस्ट्री है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वहां से सस्ते में अल्कोहल आ जाता है एफटीए साइन होने के बाद। भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि एफटीए होने से वहां का एक बड़ा बाजार मिल जाता है। और तीसरी बात कि कार्बन टैक्स जो ईयू लगाने जा रहा है वही कार्बन टैक्स लगाने के पक्ष में यूके भी रहा है। भारत की कोशिश थी कि ये कार्बन टैक्स में कुछ रियायत दी जाए, लेकिन लेबर पार्टी कार्बन टैक्स लगाने के पक्ष में काफी सख्ती से रही है, तो भी एक मुद्दा होगा। लेकिन इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि यूके के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यूके ने देखा भी है, ताइवान हो, जापान ने किस तरह से इस बाजार का फायदा उठाया। यूके शायद आसानी से भारत जैसे बड़े बाजार को हाथ से जाने नहीं देगा।